Hello students, in this video we will solve question number 45 of chapter cash flow statement from book T.S. Grewal edition 2021. Let us read the question first. In this question we are given balance sheet of Vivanka Limited as at 31st March 2017. We are given balance of share capital. Share capital beta कहाँ record होगा? Share capital will be recorded under head financing activities. Then we have reserve and surplus. Reserve and surplus में आप देखो यहाँ पर हमें note given है, note number 1. If we go to note number 1, we can see there is balance of profit and loss. And also if we'll see there is a fall in the balance of P&L which will be recorded as negative in underhead operating activities. Then we have long term borrowings. Again long term borrowings के लिए हमारे पास note है. In long term borrowings we are given long term loans. This loan is again a part of financing activities. और इस क्वेश्चन में हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख सकते हैं कि फर्दर लोन लिया है 1 जुलाई 2016 को 60,000 का लोन ऑलरेडी था और 80,000 का लोन और ले लिया. दैट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन लोन बाय 20,000. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. हम इस ओपनिंग बैलेंस पर तो फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे because this balance was there with us for the whole year. जबकि जो 20,000 का एडिशन हुआ है this was made on July 1st. That means on this we will calculate interest for how many months? 9 months. 9 months का interest calculate करेंगे इसके ऊपर. Then we are given trade payables which is again a part of operating activities. एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए बेटा हमारे पास यहाँ नोट नंबर गिवन है विच स्टैंड्स फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स. हमारे पास टैक्स का ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है और टैक्स पेड भी गिवन है. दैट मींस नाउ वी कैन कैलकुलेट मेड एज आवर बैलेंसिंग फिगर. हमें नॉन करेंट एसेट्स गिवन है विच आर अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. Non-current assets are a part of investing activities. Then we have inventories, trade receivables, and other current assets, which are our current assets, which will be recorded under head operating activities. Cash and cash equivalents will be adjusted at the last. And somewhere these balances of cash and cash equivalent help us to cross-check our answers. So let us move towards the solution. First we will prepare the working note. आप भी अपने एग्जाम में बोर्ड में पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले चाहे तो अपना वर्किंग नोट प्रिपेयर कर सकते हैं. So in this question I will first prepare my working note wherein I will prepare machinery account, accumulated depreciation account and provision for tax account. मशीनरी अकाउंट की बात करें तो हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है. कोई सेल परचेज एज सच हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं है. सो बैलेंसिंग अमाउंट विल बी एट परचेज. दिस परचेज विल बी आउटफ्लो ऑफ कैश अंडर हेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम आउटफ्लो ऑफ कैश दिखाएंगे, सब्ट्रैक्टेड अमाउंट दिखाएंगे 1,69,000 का. Coming to accumulated depreciation, again we are only having opening and closing balances. No other information is there. So we will calculate current year's depreciation as balancing figure and this balance will be added under head operating activities. और ये किसका पार्ट है बेटा? ये पार्ट है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग हेड का. वहां ये एडजस्ट होगा, वहां ये ऐड होगा. Now provision for tax account, opening balance on credit side, closing balance on debit side as it is a liability. Cash paid is given. This paid amount of cash will be subtracted under head operating activities. बेटा इसको subtract करेंगे जब हम सारी adjustments कर लेंगे operating activities की.
So this will help us to calculate net cash flow from operating activities. और राइट हैंड साइड में हमारे पास जो टैक्स मेड का बैलेंस आया है, this will be added under head operating activities to calculate net profit before tax and extraordinary items. So this is the provision that is being made in the current year. I hope the preparation of these working notes is clear. This will be subtracted and this will be added. और आप एक बात अगर ऑब्जर्व करेंगे, जितने भी बैलेंसेस आपके डेबिट साइड में आएंगे कैश फ्लो के, सॉरी इस अकाउंट के, वो सभी कैश फ्लो में सब्ट्रैक्ट होंगे, और जितने बैलेंसेस आपके पास क्रेडिट साइड में आएंगे इन अकाउंट्स के, वो कैश फ्लो में ऐड ही होंगे. सो इट्स वेरी इजी इफ यू नो वेयर दीज ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड प्लस माइनस को याद रखना बहुत आसान है. ये जो क्रेडिट साइड की सभी ट्रांजेक्शंस है ये ऐड होंगी, और जो भी डेबिट साइड की ट्रांजेक्शंस है वो सब्ट्रैक्ट होंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर वो अफेक्ट कर रही हैं. इट इज जस्ट अ शॉर्टकट टू क्रॉस चेक योर आंसर्स कि हमने क्या करेक्ट प्लस माइनस किया है या नहीं. नाउ लेट अस सी हाउ आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट विल लुक लाइक. In the books of Mevanka Limited, cash flow statement for the year ended 31st March 2017. सबसे पहले हम अपना नेट प्रॉफिट लिखेंगे अंडर एट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. जैसा मैंने क्वेश्चन रीड करते टाइम बताया, देयर इज अ डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट, देयरफॉर इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव साइड. सॉरी, इट विल बी रिकॉर्डेड विद अ नेगेटिव साइन. रिजर्व नहीं गिवन है. प्रोविजन फॉर टैक्स हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला 51,000. No dividend is given. So what we will get net profit before tax and extraordinary items. Now when we will calculate net profit before tax and extraordinary item, next step है कि हमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को एडजस्ट करना है. हमें डेप्रिसिएशन अभी हमने कैलकुलेट किया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से, जो कि हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हमने बैलेंसिंग फिगर which was coming 25,000. Now interest on loan needs to be calculated. आपके पास ओपनिंग लोन का अमाउंट गिवन है 60,000, जिसका 10% अगर हम कैलकुलेट करें पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है 6,000. 20,000 का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से अगर हम 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, जुलाई टू मार्च, देन इट इज कमिंग 1,500. और अगर हम इन दोनों का टोटल करते हैं, सो आवर टोटल इंटरेस्ट इज 7,500. आई होप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज क्लियर. इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसलिए हमने इस हेड में इसको ऐड किया है. देन वी विल गेट नेट ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल. अब हम इसमें सभी की सभी अपनी करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज को एडजस्ट करेंगे. हम देख रहे हैं कि हमारा ट्रेड पेबल फॉल कर रहा है. फॉल कर रहा है मीन्स हम अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हैं. देयर इज कैश आउटफ्लो. इन्वेंट्री में राइज हो रहा है यानी हम स्टॉक खरीद रहे हैं, अगेन इट इज आउटफ्लो. रिसीवेबल कम हो रहे यानी हमें पैसा मिल रहा है तो ऐड. करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, अगेन कैश आ रही है, इनफ्लो. ये सभी एडजस्टमेंट्स करने के बाद वी विल गेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. और जैसे ही हम इसमें से टैक्स पेड को माइनस करेंगे, वी विल गेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. I hope it is clear till this point. Moving ahead, now we have to calculate cash flow from investing activities. हमारे पास सिर्फ एक ही फिक्स एसेट गिवन है, मशीनरी, जिसकी परचेज हो रही है 1,69,000 से, लीडिंग टू आउटफ्लो ऑफ कैश. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है 7,500, जो हमने ऑपरेटिंग में ऐड किया है और फाइनेंसिंग में सब्ट्रैक्ट. लोन लिया है 20,000 का, इनफ्लो ऑफ कैश होगा. शेयर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं तो इनफ्लो ऑफ कैश होगा. नाउ वी विल गेट 2,12,500 एज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. हम इन तीनों हेड्स की कैश फ्लो को जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी एडजस्ट करेंगे, हमारे पास नेट बैलेंस आएगा कैश और कैश इक्विवेलेंट का, जो हमारे पास नेगेटिव 24,000 आ रहा है. जैसे ही हम इसमें ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को ऐड करेंगे, हमारे पास क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस ऑटोमेटिकली आएगा 25. और जब आप अपनी बैलेंस शीट में देखेंगे तो वहां पर भी आपके पास बैलेंस 25 ही है. दैट मींस
Your answer is correct. I hope this question is clear. Thank you for watching this video and stay connected.